Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Once again I'm back with another session of Let's Crack Aiapget, in which we are going to discuss important MCQs of Organon of Medicine. Around 50 MCQs are going to be discussed today, and daily I discuss almost 50 MCQs with you all. And I know आप वो videos miss नहीं करना चाहते, तो please subscribe to Inside Organon, hit the bell icon and let's get started. So the first question that we have here is 146, that is of below. Through which medicine acts? बहुत easy है ना? Medicine act करती है sentient faculties of nerve के through. So the correct answer is acts through sentient nerves. Next question, primary action of medicine is action of both medicine and vital force, action of medicine, action of vital force या reaction of vital principle. So the correct option is medicine और vital force दोनों के action को primary action कहते हैं, जिसमें vital force medicine जो होती है वो active action में होती है और vital force का होता है passive action. 148 में which one is correct? Alternating action is a type of primary action. Rheumatism alternate with dysentery is an example of alternating action. The medicine having alternating action are mentioned in aphorism 115 of Organon, and all of the above. So the correct answer of this question is, as usual, all of the above. All of these statements are correct. Next question क्या है? 149 डिस्कस करते हैं अब हम. So drug proving, हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया है अब, तो सारे क्वेश्चंस ड्रग प्रूविंग से होंगे. इडियोसिंक्रेसी क्या होती है? पेक्यूलियर कॉर्पोरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पर्सनालिटी होती है, इंडिविजुअलाइजेशन होता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज इट इज अ पेक्यूलियर कॉर्पोरल कॉन्स्टिट्यूशन. ये डेफिनेशन में इसके लिखा हुआ है. ठीक है. सरोगेट्स क्या होती है? होम्योपैथिक मेडिसिन, सब्स्टिट्यूट, एलोपैथिक मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स. तो किसी मेडिसिन के सब्स्टिट्यूट को हम उसका सरोगेट कहते हैं. ठीक है. जैसे मदर की जगह कोई और मदर बनता है तो वो सरोगेट मदर होती है. नेक्स्ट इज ऑफ विच बिलो is a suitable method to obtain pathogenetic power of drugs. Obviously हम एक्सपेरिमेंट करेंगे by doctor taking medicine internally. यही कर सकते हैं हम. ठीक है. This is the most right answer, क्योंकि और सारे में diseased person, plant, animal ये सब लिया हुआ है. ठीक है. True about idiosyncratic patient is difficult to cure. Right. They are best provers. Right. Both of the above. Right. So C is the correct answer. Idiosyncrasy is peculiar corporeal constitution, although otherwise healthy. सही है. State of hypersensitivity होती है. Same as allergy, peculiar corporeal constitution which is present in diseased condition. So A goes the correct answer. ठीक है. Next question है 154. Idiosyncrasy क्या है? Smell of rose causes faintness. ये एक टाइप की idiosyncrasy है. ये तो एग्जाम्पल दिया ही हुआ है. कौन सी बुक में? AK दास की टेक्स्ट बुक में. ठीक है. आइडियल प्रूवर क्या होता है? फिजिशियन होता है ना. हेल्दी ह्यूमन फिजिशियन नहीं. हेल्दी ह्यूमन इज द आइडियल प्रूवर. सरोगेट क्या होता है? सरोगेट रेमेडी होती है. ठीक है. और एक्चुअली रेमेडी नहीं होती है, एक सब्स्टिट्यूट रेमेडी होती है. तो सब्स्टिट्यूट अगर ऑप्शन में है so you have to go for substitute. Next है drug proving of narcotics. We observe the. सारे में हम प्राइमरी एक्शन ऑब्जर्व करते हैं, सिर्फ नार्कोटिक्स के में हम सेकेंडरी एक्शन को ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इडियोसिंक्रेसी इज एक्सप्लेन्ड इन कौन सा एफोरिज्म? 116, 117, 115, 120. द करेक्ट ऑप्शन इज 117. ठीक है. 117 में इडियोसिंक्रेसी मेंशन की गई है. इडियोसिंक्रेसी इज हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ प्रोग्नोसिस, ड्रग प्रूविंग, मैनेजमेंट ऑफ केसेस या फिर केस टेकिंग. 159 का आंसर है ड्रग प्रूविंग. इडियोसिंक्रेसी इज हेल्पफुल इन ड्रग प्रूविंग. द क्वालिटी ऑफ आइडियल प्रूवर इज सिक होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन डज द मेडिसिन प्रोड्यूस ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग? कौन से एक्शन को मेडिसिन प्रोड्यूस करती है ड्रग प्रूविंग में? काउंटर एक्शन, क्यूरेटिव एक्शन, प्राइमरी एक्शन. तो ड्रग प्रूविंग जो होती है ना वो हमेशा प्राइमरी एक्शन के लिए होती है. ऑल्दो अदरवाइज हेल्दी वाली डेफिनेशन लिखी हुई है. इडियोसिंक्रेसी इज द आंसर. ठीक है. 163 के बारे में बात करते हैं. हु इज द वर्स्ट पेशेंट अमंग द फॉलोइंग? एक हाइपोकॉन्ड्रियक पेशेंट, इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट, हिस्टेरिकल पेशेंट या नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट? तो आंसर या फिर सी हो सकता है या फिर डी हो सकता है या फिर इडियोसिंक्रेटिक. तो देखो वर्स्ट पेशेंट जो होता है ना वो इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट होता है. ठीक है. क्योंकि वो सिर्फ अपनी चीजों के लिए बेस्ट प्रूवर होता है लेकिन और किसी चीज को प्रूव नहीं करता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल कॉज ऑफ कंजेनाइटल इडियोसिंक्रेसी. व्हाट इज द फंडामेंटल कॉज ऑफ कंजेनाइटल इडियोसिंक्रेसी?
कंजेनाइटल, बचपन से अगर किसी को इडियोसिंक्रेसी है तो उसके लिए सोरिक मियाज्म रिस्पॉन्सिबल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165 ऑफ बिलो विच by which the correct data regarding the drug action can be obtained. Of the below by which correct data regarding drug action can be obtained. सारे alteration can be studied single prover में हो सकते हैं. All alteration can be ascertained at once in same experiment. All alteration can be ascertained by several experiments on several persons. तो obviously C is the correct answer. ठीक है, next C है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द बिलो नथिंग कैन बी एक्यूरेटली ऑब्जर्व ड्यूरिंग प्रूविंग। इनमें से कुछ भी एक्यूरेटली कब ऑब्जर्व नहीं होगा प्रूविंग में? जब क्या हो जाता है, जब आप उसको 100 किलो दवाई दे दोगे, लार्ज डोज दे दोगे, तो कुछ भी आपको ऑब्जर्व नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ड्रग प्रूविंग। कौन से एफोरिज्म में दी गई है भाई? बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, ठीक है। फॉर प्रूविंग इंडिजिनस प्लांट्स शुड बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इंडिजिनस प्लांट, जो कि इंडिया में प्रेजेंट है, उसको हम कैसे लेते हैं? उसको हम फ्रेशली एक्सप्रेस जूसेस के फॉर्म में लेते हैं। अक्यूट इडियोसिंक्रेसी ड्यू टू अक्यूट मियाज्म, ठीक है, और वो अक्यूट मियाज्म होता है। नेक्स्ट, ड्रग प्रूविंग और हेल्दी पर्सन वाज थॉट ऑफ फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। देखिए, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। डॉक्टर हैंडमैन ने किया था, नो डाउट, बट एल्बर्ट वॉन हैलर, ठीक है, इनका पूरा नाम है एल्बर्ट वॉन हैलर, ठीक है। ही वॉज द पर्सन जिन्होंने पहले सोचा था, थॉट, कि ड्रग प्रूविंग हेल्दी ह्यूमन बींग्स पर की जा सकती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं केन्स 12 ऑब्जर्वेशन को। बहुत अच्छा होने वाला है ये वाला सेशन, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर एक्सट्रीमली नाइस। सो जब ओल्ड सिम्टम रीअपियर होते हैं प्रोग्नोसिस में, तो प्रोग्नोसिस क्या होती है? पुराने सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। 171 क्वेश्चन है, तो प्रोग्नोसिस अच्छी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है पेशेंट फील्स बेटर बट द सिम्टम्स आर वर्स। पेशेंट को अच्छा लग रहा है बट उसके सिम्टम्स जो है वो और ज्यादा वर्स हो गए, तो सिलेक्शन आपका सही था और पेशेंट स्लोली रिकवर कर जाएगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ केन्स 12th ऑब्जर्वेशन। 12th ऑब्जर्वेशन क्या है? सिम्टम्स टेक रॉन्ग डायरेक्शन, गलत डायरेक्शन ले लिया सिम्टम्स में, तो हम मेडिसिन को एंटीडोट करेंगे। Action of the medicine upon the prover is the dash observation. Action of medicine upon the prover is drug proving. Drug proving किसमें दी हुई है? Drug proving is given in observation 9, ठीक है। Too short relief of the symptom, बहुत कम सा रिलीफ मिल रहा है, this is given in 4th, right? No, too short relief is given in 6th, ठीक है। Next, which observation is best among the Kent's observations? So, observation जो थर्ड होता है ना, वो सबसे अच्छी प्रोग्नोसिस होती है। The prognosis of patient after administration of medicine mentioned by। किसने प्रोग्नोसिस के बेसिस में किसने ये पूरा काम किया है? डॉक्टर केंट ने किया है। तो ये जो केन्स 12 ऑब्जर्वेशन है ना, दिस इज बेस्ड ऑन प्रोग्नोसिस, एंड ये बेसिकली सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन बनाने के लिए हमारी हेल्प करता है। The fact of incurable diseases come under which observation? Incurable diseases कौन से ऑब्जर्वेशन में मेंशन की गई है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में लॉन्ग कॉन्टिन्यूड एग्रेवेशन, ठीक है, विथ फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट इज इनक्यूरेबल डिजीज। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, प्लीज डू नॉट माइंड माई वर्ड्स, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अमंग 12th ऑब्जर्वेशन, विच ऑब्जर्वेशंस आर अनफेवरेबल? कौन से ऑब्जर्वेशन फेवरेबल नहीं है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 5, 7, 10 एंड 12, ठीक है, ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेमेडी इफ द एग्रेवेशन इज शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग विद इंप्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट। थोड़ा सा एग्रेवेशन हुआ है और इंप्रूवमेंट हो गया है पेशेंट का, तो क्या कंडीशन है? फेवरेबल है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर कौन से ऑब्जर्वेशन में मेंशन किया गया है, एनी आइडिया? 181, 11th ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। और इसकी भी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है। 11th ऑब्जर्वेशन देखिए, NOW, न्यू सिम्टम्स अपीयर, ओल्ड सिम्टम्स अपीयर और रॉन्ग सिम्टम्स टेक रॉन्ग डायरेक्शन। तो ओल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये कैंस 12 ऑब्जर्वेशन, सॉरी ये हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर का पार्ट है और 11th ऑब्जर्वेशन में इसीलिए हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर मेंशन किया हुआ लिखा है, ठीक है। और प्रोलॉन्ग्ड एग्रेवेशन एंड फाइनल डिक्लाइन, बहुत सारा एग्रेवेशन और पेशेंट डिक्लाइन कर जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बता सकते हैं, ये है फर्स्ट, डॉक्टर केंट का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है ये, और यहाँ पे डिजीज है वो इनक्यूरेबल है, ठीक है। विच ऑब्जर्वेशन डज नॉट कवर द डिजीज स्टेट, कौन से ऑब्जर्वेशन डिजीज स्टेट को कवर नहीं करता है, तो केंट्स का जो 9th ऑब्जर्वेशन है इसमें ड्रग प्रूविंग मेंशन की गई है, और ड्रग प्रूविंग में कोई भी पेशेंट नहीं है, कोई भी डिजीज स्टेट नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ मेडिसिन दी जा रही है, एक्शन ऑफ मेडिसिन ऑन द प्रूवर। सो 9th ऑब्जर्वेशन डज नॉट कवर द डिजीज स्टेट। नो एग्रेवेशन विद द रिकवरी ऑफ पेशेंट, कोई एग्रेवेशन हुआ ही नहीं और रिकवरी हो गई पेशेंट की। इससे हम क्या समझ सकते हैं बताइए? इससे हम ये समझ सकते हैं कि पोटेंसी हमारी सूटेबल रही होगी, इसीलिए भी कोई भी एग्रीवेशन नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन पर। तो सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन में व्हाट इज थर्ड प्रेस्क्रिप्शन? सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन के बाद दिया जाने वाला प्रेस्क्रिप्शन थर्ड प्रेस्क्रिप्शन नहीं, देयर इज नो थर्ड प्रेस्क्रिप्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये बिल्कुल मत सोचना कि पहला प्रेस्क्रिप्शन पेशेंट को दिया, फिर दोबारा आया तो सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन दिया, फिर थर्ड टाइम आया तो थर्ड प्रेस्क्रिप्शन। थर्ड प्रेस्क्रिप्शन कुछ नहीं होता है। प्लेसिबो इज मेंशन्ड इन विच एफोरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। प्लेसिबो 91 में मेंशन किया गया है, ठीक है। इसको याद पता है मैंने कैसे किया? प्लेसिबो को PL लिखते हैं, P को उल्टा बना दो 9 आ जाएगा, 91। मारना मत, कोई भी मुझे मार नहीं सकता है, पर ठीक है ऐसे मैंने याद किया है। विच इज नॉट अ सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन? कॉम्प्लीमेंट्री, कॉग्नेट, सैक्रम लैक्टिस या इनिमिकल? इनिमिकल, क्या लग रहा है? इनिमिकल इज द करेक्ट आंसर या सैक्रम लैक्टिस पता है क्या है? आप सोच लोगे कि यार सैक्रम लैक्टिस ही है, पर ये प्लेसिबो है और ये सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? थर्ड प्रेस्क्रिप्शन इज, देयर इज नो थर्ड प्रेस्क्रिप्शन, अभी अभी पढ़ के आया ना हम लोग। Second prescription means prescription given in second time placebo, the one after the previous remedy has acted, right? With a family history of tuberculosis, a few dose of tuberculin acts as dash remedy. अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री है, ठीक है, और फ्यू डोज ऑफ ट्यूबरकुलिन जो है अगर उसने उसको दिया तो वो किस चीज की तरह एक्ट करेगा? इट विल एक्ट एज एन इंटरकरेंट रेमेडी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन? रेपिटेशन एंटीडोट, पता है कैसे याद किया मैंने? C4AR, तो उसमें G क्या है? गिविंग एन अक्यूट रेमेडी, तो यही है आंसर, क्योंकि RAC ये सब आ रहा है इधर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन आफ्टर फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन हैज एक्टेड, राइट। फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन इज ऑलवेज अ राइट वन, ऐसा हम मानते हैं, या राइट और रॉन्ग भी हो सकता है। सफिशिएंट टाइम हैज बीन पास्ड, या तो बी जो है, बी है वो इसका करेक्ट आंसर है, या फिर सी है। फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन इज ऑलवेज राइट, या फिर फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन राइट या रॉन्ग कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद क्योंकि एंटीडोट भी तो इसका एक टाइप है, तो सी गोज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर नेक्स्ट चैप्टर दैट वी हैव इज पैलिएशन एंड सप्रेशन, बट इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। And so that's it. We have discussed these questions. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और डेली मैं आपके साथ ऐसे ही क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब टू इनसाइड ऑर्गेनॉन, हिट द बेल आइकन, एंड मिलते हैं कल के क्वेश्चन आर में। थैंक यू।